what's up? Welcome to my channel, The Engineer George, and we are at the unit 3 of big data analysis, in which we are will be dealing with writable interface and comparables, operators, and wrappers in Java. So it's unit named as Hadoop input output. Okay. So firstly, we have this topic of writable interface. So we have already seen about what is MapReduce program, how we write it in Java and all. So what does this writable interface means, and what does this do? What does it mean? Okay, so it is nothing. It's actually a principle of Java only. So what does this do? In the last of the video you want to like, we have an object in Java. Okay, in any programming language or object oriented language, we have some object. Okay, so the conversion of Java object into byte stream, okay, using anything virtual machine or SDK, okay, is known as serialization. Before knowing that let's know this. And it means that serialization means to convert an object into a byte stream is known as serialization, and to convert a byte into an object is known as deserialization. Okay, and Hadoop uses its own serialization and in a format known as writable. So it is actually a Hadoop input output. Okay, so Hadoop has its own serialization in a form of its writable, in a format known as its writable. Okay, and then there are two methods for doing that. First is data output and data input. It means firstly we have to write a bit data stream to make objects to data stream, and data input, it means byte stream को हम object में convert करते हैं ताकि वो read कर सके. Okay, then we have a full program for that, like literally a Java program. I don't we have it whole in the notes, but this is a pure theory session that you know what is going on. So if writable is not present in Hadoop, then it uses a serialization of Java, which increases the data overhead in network, which we do not want. Okay, writable is a very compatible and compact tool. Okay, so it uses some Java code. Okay, which why we use, because it's familiar with Java, and it increases the data overhead network. Okay, so next we will be like dealing with what is a writable class. We know that why writable object is a format in writable. Now what is object class? So Hadoop provides the classes that wrap Java primitive types and implement the writable comparable into a interface. Okay, so it is in .org, .apache, .hadoop, .io package. So classes are always in package, so this is the package, and these are two packages for that, set and get, to obviously to set a value and to get or retrieve any input output. Okay, so this we have because of classes, so it wraps the primitive types of data into the writable. Okay, wraps primitive type of Java type of data. Okay, so what is primitive type of data? We know that what are the byte, like byte, int, double, float, you know, all double boolean. So these are the primitive type of data, and then that it will be converting a writable implementation of that, and byte will convert it, byte writable, short int writable, double writable, float writable, boolean writable, and this will be of
we know that byte is 1, uh, int is 4, and then float is also 4, double is 8 and it's 4, and boolean is also 1. So this is the same, just the implementation is different. Okay, then for writable we have the whole code for that as well, and then after that we have our byte writable, like each and every we will be learning of that. Okay, so firstly is byte writable. ओके, सो बाइट राइटेबल की जो वैल्यू को चेंज कर सकता है बाय कॉलिंग सेट फंक्शन विच वी लर्न है. सो उसमें हम ये फंक्शन डाल सकते हैं कि बाइट राइटेबल इक्वल्स टू बी डॉट न्यू, बी इक्वल्स टू न्यू बाइट राइटेबल. ओके, एंड उसमें हम फंक्शन डाल सकते हैं न्यू जो हमारा कीवर्ड है, देन बाइट, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन उसमें कर्ली ब्रैकेट्स में ये फॉर्मेट है. ये एक्चुअली मैं बस आपको ऐसे का ऐसा ही दे रही हूँ कि हाँ ये है, इसको ले लो. ओके, देन ऐसे ही बहुत सारे राइटेबल्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं. देन वी हैव ऑब्जेक्ट एंड जेनेरिक. यहाँ पे हमने कौन से राइटेबल्स कवर कर लिए हैं. हमने राइटेबल इंटरफेस कर दिया, कंपेरेटर्स कर दिए, राइटेबल रैपर्स फ्रॉम प्रिमिटिव टेक्स्ट हमने ये पढ़ रहे हैं. हमने राइटेबल बाइट राइटेबल को अभी हमने करा है. अब हम नल, ऑब्जेक्ट एंड जेनरिक राइटेबल को कर लेते हैं कवर. सो नल, ऑब्जेक्ट, null writable and object writable. Okay, so this is used as placeholder for empty values. We know that empty values को store करने के लिए हम null use करते हैं. And then object writable, so it is used actually if अगर इसका कोई question आए तो इसमें बस ये लिखना है कि हमें empty place value जहाँ empty होती है वहाँ पे हम इस function का use कर लेते हैं. And object writable का हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, primitives में. ओके, अभी हमने पढ़ा कि वो हम राइटेबल इसीलिए बनाते हैं. देन primitives में, स्ट्रिंग्स में, enum में, नल में, इन सब जगहों पे हम यूज़ करते हैं. जहाँ पे यूज़फुल जब होता है जब एक से ज़्यादा टाइप्स यहाँ पे होते हैं. देन वी विल हैव लाइक नल, ऑब्जेक्ट एंड जेनेरिक. देन जेनेरिक आता है, जेनेरिक राइटेबल इज यूज्ड बिकॉज बेटर देन, ये बेटर होता है ऑब्जेक्ट से, बेटर देन, बिकॉज यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट राइटेबल जब हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं एज अ स्ट्रिंग तो वो उसको आउटपुट फाइल में एज अ की वैल्यू पेयर के रूप में ये दे देता है. तो इसीलिए ये उससे अच्छा है, अपेंड कर देता है क्लास के डिक्लेरेशन को एज अ स्ट्रिंग इनटू द आउटपुट फाइल. ओके, देन for the next we will have writable collection. now collection का मतलब यही है कि हमने बहुत सारे उसको जोड़ दिया है. तो इट मीन्स दैट हम देखते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम जोड़े तो वो अरे बनता है. तो अरेबल की राइटेबल क्लास को कलेक्शंस में अंदर इंक्लूड किया है. दो टाइप के होते हैं, मैप राइटेबल क्लास एंड अरे राइटेबल क्लास. ओके, दीज आर टू. एंड हमने देखा है कि अरे एक नॉर्मल होता है और एक 2D अरे भी होता है. सो 2D अरे राइटेबल होता है एंड एक नॉर्मल अरे राइटेबल होता है, 1D होता है जो 1D अरे राइटेबल. ओके, देन यहाँ पर भी मैप के 3 टाइप्स है. ये है एब्स्ट्रैक्ट, देन मैप राइटेबल नॉर्मल एंड देन सॉर्टेड. ओके, सो यहाँ पर हमारा मेजरली राइटेबल कलेक्शंस, इम्प्लीमेंटिंग कस्टम राइटेबल, इम्प्लीमेंटिंग रॉ कंपैटिबल कस्टम ऑपरेटर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमने अपने अभी तक देख लिया कि राइटेबल्स क्या होते हैं, उसमें हमारे क्या हो रहा होता है उसमें. देन फिर यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ जाता है
हमने पहले देख लिया कि यहाँ पे डीसीरियलाइजेशन एंड सीरियलाइजेशन होती है इंटरफेस में। उसके बाद हमने देखा कि राइटेबल कंपेरेबल क्या होते हैं और उसका कोड क्या होता है। उसके बाद ये कि इसे हम सब इंटरफेस से क्या कर सकते हैं डिक्लेयर, एंड सिमिलर होता है ये राइटेबल के, बस इसमें एक कंपेयर मेथड होता है इसमें। एंड देन हमने देख लिया कि ये जितने भी राइटेबल नल क्लासेस वगैरह है ये सब क्या होते हैं। एंड देन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें राइटेबल कस्टम हम कैसे बना सकते हैं। 3 इसके हमने देख लिए, कलेक्शंस हमने देख लिया, उसके बाद मैप विथ क्लासेस हमने देखा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटिंग अ रॉ कंपैरेटर फॉर स्पीड कस्टम कंपैरेटर्स। ओके, यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग अ कस्टम राइटेबल जो हम है, ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हम अपने कस्टम्स राइटेबल्स भी बनवा सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि राइटेबल क्या होता है। राइटेबल जो होता है ऑब्जेक्ट, और उसमें हमने अभी देखा कि ऑब्जेक्ट और बाइट स्ट्रीम को जो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं राइटेबल। सो यहाँ पर हम कस्टम राइटेबल भी बिल्कुल अपना बना सकते हैं। एंड हडूप कम्स विथ यूजफुल सेट ऑफ राइटेबल implementation that serves most purpose. However, in some occasion you may need to write your own custom। मतलब हडूप में बहुत से अपने आते हैं फंक्शंस जिसमें आप काम हो सकता है, लेकिन अगर आपको खुद का बनाना है तो वो भी सर्व करता है पर्पस हडूप। सो with a cluster is the cluster writable, you have full control over the binary representation and sort order, because writable are the heart of MapReduce data path। ओके, हमने पढ़ा था कि पाथ नेम से शुरू होता है ये। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल होता है पूरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का, हम जैसे चाहें हम उसे बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास ये है कि एक सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस भी हमारे पास होती है, इफ़ेक्ट आता है इसमें परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस जो है वो हमारी कोड की वो भी इफ़ेक्ट होती है। देन इसका पूरा कोड है कि इनपुट जावा, उसके बाद पब्लिक, उस पर फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद फिर बूलियन का फंक्शन लगेगा, एंड ऐसे करके पूरा एक कोड है जिसमें हम अपने कस्टमर राइटेबल लिख सकते हैं। एंड या दैट सम्स अप दिस होल unit. So thank you so much for watching and subscribe for more.